الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين وقال الله عز وجل في مقام آخر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براتان برات من النار وبرات من النفاق. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمارے لیے بہت ساری سہولتوں کو مہیا کیا، زندگی گزارنے کے طریقے کو سکھانے کے لیے اس روئے زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور تمام لوگوں کو، پورے امت مسلمہ کو ایک مغفرت کا اور اسی طریقے سے جنت میں جانے کا ایک مہینہ نصیب عطا فرمایا، اور وہ ہے رمضان المبارک. معزز سامعین، ماہ رمضان ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اس کا ایک ایک دن، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. یہ مہینہ بھی ویسے ہی گزر جائے گا جیسا کہ اس سے پہلے جتنے مہینے تھے، بالکل سیم ویسے ہی یہ مہینہ بھی گزر جائے گا. حضرات گرامی، وہ مہینہ ہے جس کا ایک مومن بندہ، ایک موحد بندہ سالوں سال اس کا انتظار کرتا ہے، اور اس کے آنے پر وہ انسان خوشی محسوس کرتا ہے. اور خوشی محسوس کیوں نہ کرے؟ وہ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے.
जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों के लिए ये आसानी पैदा कर देता है कि मेरा जो बंदा चाहे जन्नत के अंदर वो आसानी से दाखिल हो सकता है, क्योंकि जहन्नम के सारे दरवाजे बंद हैं। अब जो चाहे वो मगफिरत करके, अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान करीम की तिलावत करके, इंसान अगर चाहे तो अपने गुनाहों की बख्शिश करवा करके वो जन्नत के अंदर जा सकता है। लेकिन वो इंसान जो अपने गुनाहों की माफी ना करवा करके अगर वो चाहे तो सबसे बड़ा बदनसीब इंसान बन सकता है। हजरात गिरामी, जरा तसव्वुर कीजिए, जरा सोचिए और सोच समझिए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक मेहमान बनकर के ये महीना आया है। 11 महीने के बाद में लौट करके ये साल में सिर्फ एक बार हमारे पास मेहमान की शक्ल में आता है और उसके बाद में फिर ये रुखसत हो जाता है। हमें और आपको इसका इस्तकबाल कैसे करना है? एक बार आप सोचिए, अगर मैं आपसे सवाल करूं, पूछूं तमाम लोगों से कि अगर आपके यहां कोई आला किस्म का मेहमान आए, किसी दूसरे कंट्री का अगर कोई मेहमान बन के आए आपके पास, तो आप बताइए कि आप उसकी खातिरदारी करने के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए, उसकी तौकीर और उसकी ताजीम करने के लिए आप क्या क्या इंतजाम करेंगे? सारे लोगों का जवाब यही होगा कि हम उसकी इज्जत करने के लिए कोई भी ऐसा मौका नहीं गवाएंगे उसकी इज्जत में, जिसकी वजह से उसकी इज्जत में कमी आए। यानी हर तरह के हम इंतजाम करेंगे। हम अपने घरों को सजा देंगे, घरों को लाइटिंग कर देंगे, उसको कलर कर देंगे, रास्तों को साफ कर देंगे और अपने घरों को कुमकुमों के जरिए से सजा देंगे और खुद भी हम जीनत अख्तियार करेंगे और उसके लिए तरह तरह के किस्म किस्म के खाने तैयार करेंगे ताकि उसकी इज्जत में कोई कमी ना आए। हजरात गिरामी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक महीना आया है हमारे पास, मेहमान की शक्ल में आया है और ये भी एक दिन हमसे रुखसत हो जाएगा। हमें और आपको इसका इस्तकबाल कैसे करना है? कौन से वो अमाल हमें और आपको इन महीने के अंदर रह करके करना है? इन्हीं अमाल को मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा तक़ब्बल या रब्बिल आलमीन। आप हजरात से गुजारिश है कि आप थोड़ा आगे आ जाइए, इसलिए कि अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं और अभी से जगह की तंगी की महसूस हो रही है। आप हजरात थोड़ा आगे आ जाइए ताकि जो हजरात पीछे आए उनको कोई दुश्वारी ना हो। हजरात गिरामी, हमें और आपको इस महीने की अजमत को समझना होगा, इसकी अहमियत को समझना होगा। इस महीने के अंदर एक ऐसी रात भी है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को ये एहसास दिलाने के लिए एक मुकम्मल आयत करीमा नाजिल कर दिया, एक मुकम्मल सूरत नाजिल कर दिया। इस रमजान मुबारक की अहमियत को बढ़ाने के लिए, इसकी अजमत को बढ़ाने के लिए, दीगर महीनों पर फौकियत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल सूरत नाजिल कर दी और फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, क्या मेरे बंदो ये वो रात है, ये वो महीना जिसके अंदर हमने कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को मुबारक महीने के अंदर नाजिल किया और मुबारक महीने के मुबारक रात यानी शब कद्र के अंदर इसको नाजिल किया। उसके बाद में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ नबी आपको क्या मालूम कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? पहले अल्लाह तबारक ताला ने ये बयान किया कि हमने इसको नाजिल किया कुरान करीम को
रमजान मुबारक के लैलतुल कद्र के अंदर। उसके बाद में फिर अल्लाह ताला सवाल कर रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ नबी, आपको नहीं मालूम कि यह शब कद्र क्या है? उसके बाद अल्लाह तबारक ताला उसका जवाब खुद आगे दे रहा है, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया कि लैलतुल कद्र एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अगर आदमी एक दिन उसमें अपने आप को अल्लाह के लिए लगा दे, अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर दे, तो मेरे भाइयों एक दिन की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर होगी। एक दिन की इबादत अगर हम और आप अच्छे से कर ले जाए और अल्लाह तबारक ताला उसको अगर अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले, तो मेरे भाइयों सिर्फ एक दिन की इबादत जन्नत में ले जाने के लिए काफी है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक ही दिन अहमियत का हामिल है, बाकी उसके दिन नहीं मेरे भाइयों, इसका एक एक दिन अहमियत का हामिल है। और याद रखिए, अगर कोई इंसान इससे अगर मुकम्मल तरीके से अगर फायदा उठा ले जाए, तो वो आदमी शहीद शख्स से पहले जन्नत के अंदर चला जाएगा। शहीद के मकाम और मर्तबे को आप जानते हैं कि उसका मकाम क्या है। अल्लाह की दीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नस्र व इशाअत के लिए, उसके इस्लाम को फैलाने के लिए इंसान अपने सर पर अपनी जान, अपने हाथ पर, अपनी हथेली पर अपनी जान को लेकर के निकलता है और रास्ते में शहीद हो जाता है, उसका एक अलग मकाम है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान किया कि अगर आदमी इस महीने में आमाले सालिहा कर ले जाए, नेकियों का जखीरा अगर वो इकट्ठा कर ले जाए, तो वो आदमी जन्नत में उस शख्स से पहले जा सकता है जो आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ। आपको मैं बताऊं, हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में था। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था। उसी दौरान दो आदमी आते हैं, दूर दराज से, दूर बस्ती से दो आदमी आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, इस्लाम की शरण में आ जाते हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि उन दोनों आदमियों में से एक आदमी बहुत ही इबादत गुजार था, बहुत ही मुत्तकी और बहुत ही परहेजगार था, ज्यादा मेहनती था, अल्लाह की इबादत के लिए वो अपने आप को वक्फ कर रखा था। उसके बाद में उसका इंतकाल हो जाता है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलता है, इसकी रूह निकल जाती है, इसको कत्ल कर दिया जाता है, ये शहीद हो जाता है। लेकिन दूसरा जो आदमी था उसका इंतकाल 1 साल के बाद में होता है। पहला आदमी जो ज्यादा मेहनती था अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, दूसरे आदमी का इंतकाल 1 साल के बाद हुआ। हजरत अबू तलहा अंसारी कहते हैं कि मैंने एक दिन ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे के पास खड़ा हूं, जन्नत के दरवाजे के करीब खड़ा हूं। मैं उन दोनों आदमियों को देखता हूं जो दोनों आए थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल किया था। मैं उन दोनों आदमियों को भी वहां देखता हूं। मैं उसके बाद में देखता हूं कि एक आदमी जन्नत से निकलता है, जन्नत से आता है और उनमें से एक आदमी को इजाजत देता है कि तुम जन्नत में चले जाओ। जो आदमी बाद में इंतकाल होता है, जो आदमी बाद में इंतकाल होता है, 1 साल के बाद जिसका इंतकाल होता है, उसको वो पहले इजाजत देता है कि तुम जन्नत में चले जाओ। फिर वो जन्नत में चला जाता है। मेरे भाइयों, उसके बाद में कुछ देर के बाद फिर वो निकल करके आता है, वो आदमी फिर आता है, उसके बाद में दूसरे शख्स को इजाजत देता है कि तुम भी जन्नत के अंदर चले जाओ। यानी पहले शख्स को जो 1 साल के बाद में इंतकाल होता है उसको जन्नत में पहले जाने की इजाजत दे दी जाती है, और जिसका इंतकाल पहले हो जाता है और उसको एक फजीलत और हासिल है कि वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको 1 साल क्या उसको बाद में इजाजत दी जाती है कि अब आपकी बारी है, अब आप जन्नत में जाइए। उसके बाद में हजरत अबू तलहा अंसारी कहते हैं कि मैं वहीं खड़ा था, मैं वहीं खड़ा हूं, देख रहा हूं कि वो आदमी फिर आ रहा है और मेरे पास आकर के कहने लगा, ऐ तलहा तुम अभी चले जाओ, तुम्हारा भी वक्त नहीं आया है, तुम चले जाओ अभी। हजरत तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं इतने में मेरी आंख खुल जाती है और मैं इस वाक़े को लोगों से बयान करता हूं, लोग ताज्जुब करते हैं, लोग हैरत में पड़ जाते हैं, और ये वाकया, ये खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। लोग सहाबे किराम जाकर के
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ای ذالک تعجبون، اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا؟ اگر وہ آدمی پہلے جنت کے اندر چلا گیا تو اس سے کیا ہوا؟ کیا تم اس چیز کو لے کر کے تعجب میں پڑے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اس بات پر تعجب ہے، واقعی اس بات پر تعجب ہو رہا ہے. کہا ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا ثم استشہد، اے اللہ کے رسول ہمیں تعجب کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ آدمی زیادہ عبادت گزار تھا، زیادہ محنتی تھا، لیکن اور دوسری فضیلت اس کو یہ بھی حاصل تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے لیکن بعد میں جنت میں داخل ہوتا ہے، ہمیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے تو بتاؤ، ذرا بتاؤ کہ کیا وہ آدمی جو پہلے جنت کے اندر داخل ہوا کیا وہ 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو حقیقت ہے، وہ 1 سال تک زندہ رہا. آپ نے فرمایا ثم ادرک رمضان وصلی کذا وکذا وکذا، فرمایا کیا وہ 1 سال کے اندر جب وہ زندہ رہا تو کیا وہ نماز نہیں پڑھا؟ کیا وہ 1 سال کے اندر جب زندہ رہا تو رمضان المبارک کے روزے نہیں پایا؟ کہا اللہ کے رسول پایا. تو فرمایا کہ جب اس کے روزے بھی رکھا، نمازیں بھی پڑھی، اتنی زیادہ اس نے سجدہ کیا تو اس وجہ سے وہ جنت کے اندر اس سے پہلے داخل ہو گیا. رمضان مبارک کے روزے رکھا، یعنی رمضان کے اندر وہ مکمل، رمضان مبارک کے اندر رہ کر کے وہ مکمل طریقے سے فائدہ اٹھایا، اور اٹھا کر کے جب اس نے بہت سارے نیکیوں کا ذخیرہ کیا، میرے بھائیوں اس شہید شخص سے وہ آدمی پہلے جنت کے اندر چلا جاتا ہے جو آدمی مکمل طریقے سے رمضان مبارک کا فائدہ اٹھاتا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنا ہے. اگر ہم اور آپ بھی شہید شخص سے اگر جنت کے اندر پہلے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی میرے بھائیوں اور دوستوں اور قوم کے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے وقت کو لایانی چیزوں میں ضائع نہ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانا ہے تاکہ ہم بھی ایسے لوگوں سے جنت میں پہلے چلے جائیں. حضرات گرامی، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا ہے، جو ہمیں دیا، یہ اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے. اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور عام طور پر آدمی اس نعمت کی کم ہی شکریہ ادا کرتا ہے جو نعمت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور جو نعمت انسان کو نہیں ملتی ہے اس کے لیے وہ رات اور دن ایک کر دیتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، اور اس نعمت کی قدر اس کے نزدیک بہت کم ہی ہوتی ہے جو نعمت انسان کو مل جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے، مثال کے طور پر صفائی ایک مسلمہ حقیقت ہے، صفائی کرنا ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن کی صفائی، اپنے کپڑے کی صفائی، اپنے گھر اور قرب و جوار آس پاس کی صفائی انسان کی ذمہ داری ہے. اب ایک آدمی یہ کہے کہ میں، یا پوری دنیا کو لے لیجئے، پوری دنیا صفائی کو چھوڑ کر کے گندگی اختیار کر لے، تو کیا اس صفائی کی افادیت میں، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت میں کوئی کمی آئے گی؟ کوئی کمی نہیں آ سکتی. میرے بھائیو، اسی طریقے سے ایک آدمی، سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں ہمارے اور آپ کے گھروں تک آتی ہے اور پوری دنیا اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے. اگر ایک آدمی اگر یہ سوچے، یہ تصور کرے کہ جب سورج کی روشنی آئے گی تو میں اپنی آنکھ بند کر لوں گا، اس سے فائدہ حاصل نہیں کروں گا، بتائیے سورج کا اس میں کیا بگڑنے والا ہے؟ سورج کا کچھ بھی نہیں بگڑنے والا ہے. بگڑے گا تو ہمارا اور آپ کا بگڑے گا، نقصان اور خسارے میں ہماری اور آپ کی زندگی جائے گی. میرے بھائیو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو جو یہ نعمت دیا ہے، اس نعمت کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنا ہے. مثال کے طور پر یہ جو مائک ہے، میں اس مائک کے ذریعے سے آپ تک آواز جو پہنچا رہا ہوں، اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو بیکار ہے. اگر اس کے وائر کو مشین سے نکال دیا جائے یا لاؤڈ اسپیکر کو ہٹا دیا جائے تو اس کا کام بیکار ہے. اس کی قدر ویسے ہی کرنا ہے جیسے کرنا چاہیے. اب یہ مکمل طریقے سے اپنے کام پر یہ جاری ہے یہ مائک، لیکن اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے صحیح طرح استعمال نہ کریں تو مائک رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟
नहीं होगा मेरे भाइयों। इसी तरीके से अगर एक आदमी ये कहे, अगर एक आदमी रमजान मुबारक के अंदर रह करके रोजों को तर्क कर दे, रोजों को छोड़ दे, और अगर वो ये सोचे कि मैं रोजा नहीं रखूंगा तो रोजा हमारे न रखने की वजह से रोजे की अजमत में कमी आ जाएगी, माफ कीजिएगा, रोजे की अजमत में कमी आने वाली नहीं है। कमी अगर आएगी तो हमारे और आपकी नेकियों में कमी आएगी। तो मेरे भाइयों, ये नेमत जो हमें और आपको अल्लाह तबारक ताला ने ये दिया है, इस पर हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बंदे हमारा शुक्रिया अदा करते हैं उस पर हम उनको दोगुना कर देते हैं उस नेमत को। मुमकिन है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको ये महीना दोबारा नसीब फरमाए। कितने ऐसे लोग थे गुज़िश्ता रमजान के अंदर मेरे भाइयों जो हमारे दरमियान में थे, उनका उठना और बैठना, उनका खाना और पीना, उनका सहरी और उनका इफ्तार करना सब हमारे साथ में था, लेकिन अफसोस इस रमजान मुबारक के अंदर वो नजर नहीं आ रहे। इस दुनिया से वो रुखसत हो चुके, इस दुनिया को उन्होंने छोड़ दिया और लाखों मन मिट्टी के नीचे वो दब चुके हैं, उनकी हड्डियां सड़ चुकी हैं, उनके चेहरे मस्क हो चुके हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक ताला का हमें हर हाल में शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह तेरा बहुत बड़ा शुक्र और तेरा एहसान है कि तू हमें यह महीना नसीब फरमाया जिसके जरिए से हम जन्नत के अंदर दाखिल हो सकते हैं। ए अल्लाह, तो हमारी गुनाहों को माफ फरमा। इस तरीके के हमें अपने अल्फाज में, जिस तरीके से क्या है, हमें और आपको अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें और आपको करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वइस्ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें यह बाखबर कर दिया है, तुम्हें यह बता दिया है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुमने शुक्रिया अदा किया तो हम तुम्हें मज़ीद अता करेंगे। वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने मेरी नाफरमानी की, मेरी नाशुक्री की, तो याद रखिएगा, यह भी याद रखिएगा कि मेरा अजाब जो है वो बहुत सख्त है, मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह ताला ने कहा तुम्हें शुक्रिया अदा करना है। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा, ऐ नबी क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिनको हमने नेमतें दी थी, उन नेमतों पर उन्होंने शुक्रिया अदा करने के बजाय उन्होंने नाशुक्री की। तो फरमाया इस नाशुक्री ने उन्हें एक बुरे गड्ढे में ला करके खड़ा कर दिया, और वो गड्ढा है जहन्नम यस्लौनहा दारुल करार। फरमाया कि वो जहन्नम का गड्ढा है जो बहुत ही बुरी जगह है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा फिर हमें और आपको ये नेमत जो हमें इस साल हमें फराहम किया है, गुज़िश्ता साल भी हमें और आपको फराहम करे, ताकि जो हमसे खताएं हों, जो हमसे बुराइयां सरजद हों, उन बुराइयों को हम अल्लाह तबारक ताला से माफ़ी करा करके और हमारे जो नाम अमाल में जो धब्बा है उस नाम अमाल को हम साफ कर दें। हमें और आपको इस महीने का इस्तकबाल करने के लिए एक और चीज़ करना है, वो ये कि अपनी नीयत को खालिस करना है, अपनी नीयत को खालिस करना, नीयत के अंदर रियाकारी ना आए। इसलिए कि बगैर नीयत के, बगैर खालिस नीयत के कोई भी अमाल कबूल नहीं है। आप कितना भी अल्लाह के रास्ते में सदका कर लीजिए, कितनी ही नमाजें पढ़ लीजिए, कितने ही क्या है कुरान करीम का तिलावत कर लीजिए, अगर दिल के अंदर खोट आया, दिल के अंदर अगर रियाकारी आई तो ये सारी की सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। मेरे भाइयों, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें और आपको अपनी नीयत को एक खालिस करना होगा। जो भी हम अमाल करें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करें, हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि हम सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, मिस्कीनों की मदद कर रहे हैं, और हमारे दिल के अंदर यह है कि मैं खर्च कर रहा हूं, फला शख्स हमें कहेगा बड़ा ही आदमी सदका कर रहा है, बहुत ही नमाजें पढ़ रहा है, बहुत ही कुरान की तिलावत कर रहा है। अगर यह चीज हमारे दिलों के अंदर आ गई तो याद रखिए ये सारे अमाल बर्बाद हो गए। हजरत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना, मन सल्ला युराई फक़द अशरक वमन सामा युराई फक़द अशरक वमन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक, कि जिस शख्स ने दिखाने के लिए नमाज पढ़ा उसने शिरक किया, जिसने दिखाने के लिए रोजा रखा उसने शिरक किया, जिसने लोगों को दिखाने के लिए सदका किया उसने भी शिरक किया। लोगों को दिखाने के लिए आदमी अगर नमाज पढ़ रहा है, मैंने बताया ना कि अगर आदमी आमतौर पर दिखाने के लिए, कैसे एक आदमी को आमतौर पर नमाज पढ़ने के लिए, 2 रकात की नमाज पढ़ने के लिए 2 मिनट लगता है। चलिए बहुत सारे लोग यहां मौजूद हैं, अब एक आदमी आता है नमाज पढ़ने के लिए 3 मिनट लगाता है। दिल के अंदर क्या है?
जो लोग बैठे हुए हैं देखें कि मौलवी साहब बड़े इखलास के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, ये दिल के अंदर ना आए। और इसी तरीके से रमजान मुबारक का रोजा जिसने रखा दिखाने के लिए, उसने भी शिर्क किया। वो कैसे? ये कि आदमी सफर कर रहा है, सफर में रोजा रखना जायज है, रख सकते हैं, लेकिन अगर ये नियत के अंदर आ जाए कि मैं रोजा रख रहा हूं, लोग मुझे कहेंगे कि दुश्वारियों का सामना करते हुए भी आदमी रोजा रख रहा है, अगर ये चीज हमारे नियत के अंदर आ गई, वो भी बर्बाद। इसी तरीके से मेरे भाइयों सदका करना है। सदका की बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु कल क़यामत के दिन जब नामे अमाल को तकसीम किया जाएगा, बांटा जाएगा, 3 शख्स को लेकर आया जाएगा। बड़ी मारूफ और मशहूर यह हदीस बुखारी मुस्लिम की रवायत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि जब जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा तो एक शख्स को लेकर के आया जाएगा जो बड़ा ही मालदार होगा, यानी उसको अल्लाह तबारक ताला अपनी नेमतों को याद दिलाएगा, मालदार होगा, इस तरीके से आलिम होगा, और इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला होगा। अल्लाह तबारक ताला उसे अपनी अपनी नेमतों को याद दिलाएगा। वो कहेगा, बताएगा सब अमाल को कि अल्लाह मैं तेरे रास्ते में ये किया, मैं तेरे रास्ते में ये किया, मैं तेरे रास्ते में ये किया। अल्लाह ताला कहेगा तो झूठ बोल रहा है, इसलिए नहीं किया था, इसलिए किया था कि दुनिया वाले तुझे ये कहें, इसलिए क्या है तेरे अमाल सब बर्बाद हुए और तुझे क्या है तेरा ठिकाना जो है वो जहन्नम है। तो इस चीज से मेरे भाइयों हमें और आपको खुसूसी तौर पर बचना होगा। हम कम अमल करें, कम अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करें, लेकिन ये चीज हमारे दिलों के अंदर नहीं आनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसे आज के दौर में सदका किया जाता है, खैरात किया जाता है, दिया जाता है, मिस्किनों की मदद की जाती है, सेल्फी लिया जाता है, उसको फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करके बताया जाता है। ये रियाकारी नहीं है तो और क्या है? इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको अगर आपको खर्च ही करना है, अगर आपको मिसाल के तौर पर किसी ने आपको पैसा दिया है खर्च करने के लिए कि इसको मिस्किनों के अंदर तकसीम कर देना, इसको बांट देना, और आप अगर ये चाहते हैं कि उन लोगों का फोटो ना आए, उन लोगों को शेयर ना किया जाए, और हमें उस आदमी को बताना भी है कि आपने जो हमें पैसा दिया था उसको हमने लोगों के अंदर तकसीम कर दिया। आप राशन बांट रहे हैं, राशन इकट्ठा कर लीजिए, उसका फोटो खींच करके उसके पास सेंड कर दीजिए, उसको बता दीजिए कि आपका पैसा जहां लगाना था हमने लगा दिया। अब ये दिखावा नहीं है कि हम फला शख्स को दे रहे हैं, उसका भी सेल्फी लेकर के व्हाट्सएप पे हम भेज रहे हैं, फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं। ये मेरे भाइयों ये रियाकारी है, यही चीज तो रियाकारी है, यही तो दिखावा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सूरह बय्यिना पढ़िए, अल्लाह ने फरमाया वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलात व युतुज़ ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों को यह हुक्म दिया गया वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह कि खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसी के लिए दीन को खालिस करो, नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, और यही खालिस दीन है, यही मजबूत और यही मुस्तहकम दीन है। मेरे भाई, और जिस शख्स के अंदर रियाकारी आ जाए, जिसके अंदर दिखावा आ जाए, तो यह आयत करीमा ऐसे लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया मन काना युरीदुद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अमालहुम व हुम फ़ीहा ला युबख़सून उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िन्नार। फरमाया कि जो लोग दुनिया की जिंदगी चाहते हैं, लोगों को दिखा करके लोग हमें कहेंगे, अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग दुनिया की जिंदगी चाहते हैं, मन काना युरीदु दुनिया, और उसकी जीनत को चाहते हैं, इसकी रंगीनियों को चाहते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि वो जो नेक आमाल इंसान जो कर रहा है, अगर वो ये चाहता है कि मैं खर्चा करूं और लोग मुझे ये इन अलकाब से हम नवाजा जाऊं, लोग मुझे मालदार शख्स कहें, मुझे ये वो यानी फला फला अलकाब से हमें नवाजे, अगर ये इंसान के अंदर आई तो फरमाया जो उसने नेक आमाल किया है, उस नेक आमाल के बदले में हम उसको वो चीज अता कर देंगे। नुवफ़्फ़ी इलैहिम अमालहुम व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। और फरमाया वो जो सारे अमाल जो उसके नेक अमाल जो उसने किया होगा वो सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। मन काना युरीदु दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अमालहुम व हुम फ़ीहा ला युबख़सून उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िन्नार उलाइका अल्लज़ीना लहुम फिल आखिरत। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि यही वो लोग जिनके लिए आखिरत के अंदर सिवाय आग के और कुछ नहीं है, सिवाय आग के और कुछ नहीं। मेरे भाइयों, तो
कहने का मतलब ये है कि हमें और आपको अगर हम जो भी सदका और खैरात करें, जो भी अल्लाह के रास्ते में हम और आप दें, हमारे और आपके अंदर दिलों के अंदर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। और ज़्यादा बेहतर ये है कि बारहा आप सुनते रहते हैं इन चीज़ों को कि दाहिना हाथ दे, बाएं को पता ना चले। मतलब ये कि एक आदमी को आपके पास दो आदमी खड़े हुए हैं, एक दाहिने साइड में है, एक बाएं साइड में है, आप दाहिने वाले को इस तरह दें कि बाएं वाले को पता ना चले कि उसको क्या दिया गया। ये चीज़ हमारे और आपके अंदर होनी चाहिए। तो नीयत को खालिस करना है मेरे भाइयों। इसी तरीके से हमसे जो गुनाह हुए हैं, रमज़ान मुबारक से जो पहले हमसे गुनाह हुए हैं, उन गुनाहों को हमें और आपको अल्लाह की बारगाह में रख करके हमें और आपको अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना होगा। अगर हम और आप इस महीने से मुकम्मल तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो साबिका गुनाह जो हमसे हुए उनसे हमें और आपको अल्लाह तबारक तआला से माफ़ी और तलाफ़ी करना होगा। बड़ा मशहूर मकूला है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हमसे 11 महीने अगर गलतियां हो गई, छोड़िए उसको, अब आइए एक महीना जो हमें और आपको दिया गया है, इसमें रह करके हम अल्लाह की वो इबादतें कर ले जाएं, इतनी इबादतें कर ले जाएं कि वो 11 महीने में जो हमने नहीं किया है वो एक महीने के अंदर क्या हम उतना इबादत कर दें कि 11 महीनों पर भारी पड़ जाए। मेरे भाइयों, तो हमें और आपको अपने गुनाहों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने तो अपने बंदों से ये ऐलान करते हुए कहा है कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम मेरे बंदों के दरमियान में मेरे बंदों को बता दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल या इबादिल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। ऐ नबी, आप कह दीजिए, मेरे उन बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपने नफ्स पर ज़्यादती की है, जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, उनसे कह दो ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से तुम मायूस ना हो, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में आइए और अपने सर को अल्लाह की बारगाह में रख करके अल्लाह से दुआएं कीजिए, अल्लाह से माफी मांगिए। अल्लाह तबारक तआला गुनाहों को माफ करने वाला है। मेरे भाइयों, अगर किसी आदमी का बेटा अगर बिगड़ जाए, बिगड़ायल बेटा अगर हो जाए और अपने बाप की कमाई हुई दौलत को, उसकी प्रॉपर्टी को अगर वो तबाह और बर्बाद कर दे, उसकी प्रॉपर्टी को बर्बाद करने का अगर एक बेटा सबब बन जाए, लेकिन बाद में अगर उसको निदामत होती है, अपने किए और कराए पर उसको एहसास होता है कि मैंने बहुत गलत किया, जो मैंने अपने बाप की कमाई हुई, जो मेरे पास दौलत थी, उसको मैंने तबाह कर दिया। अब उसको अपने ये एहसास होता है कि चलता हूं, मैं अपने बाप से माफी मांगता हूं, आकर के अपने बाप के सामने अपने सरों को उसके पैरों पर डाल देता है और कहता है बाप अल्लाह मेरे अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे भाई उस तरह सोचिए, वो बाप इतना जल्दी राजी नहीं होता जितना जल्दी अगर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में एक आदमी अपने सर को रख करके अल्लाह ताला से माफी मांगे तो अल्लाह तबारक ताला माफ कर देता है अपने बंदे को, उस बाप से पहले माफ कर देता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कीमिया सआदत के अंदर बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि अगर एक गुनाहगार इंसान, एक खताकार इंसान अल्लाह की बारगाह में अगर वो अपने गुनाहों को रख करके माफी तलाफी करता है तो अल्लाह की रहमत उसे ऐसे ही सहारा देती है, उसको ऐसे ही सपोर्ट करती है जैसे कि एक शीरखार बच्चा है, एक दूध पीता हुआ बच्चा है और वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, भूखा है, प्यासा है, तड़प रहा है, भूख की वजह से वो तड़प रहा है। जैसे ही उसकी आवाज उसके माँ के कान में जाकर के पड़ती है, माँ तड़प उठती है और क्या उसको दौड़ती है, उसको उठा लेती है, उसको दूध पिलाती है और उसको चुप कराती है। हर तरह के हत्तल इम्कान वो कोशिश करती है कि मेरा बच्चा चुप हो जाए, मेरे बच्चे की पेट भर जाए। जब मेरे भाइयों वो बच्चा उस बिस्तर पर लेट करके वो जब चीखता और चिल्लाता है भूख की वजह से, तो उसकी माँ तड़प उठती है। इसी तरीके से अगर एक बंदा इस जमीन पर, इस फर्श पर अगर रह करके और अल्लाह की बारगाह में अगर वो अपनी दुआओं को अल्लाह तबारक तआला से वो दुआएं करता है तो अल्लाह की रहमत भी अर्श पर तड़प उठती है कि किसी तरीके से उस बंदे को माफ किया जाए। मेरे भाइयों, हमें और आपको अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। इसी तरीके से हजरात गिरामी, एक बात और मैं कहूंगा, हमें और आपको नमाजों की पाबंदी करना है। फर्ज नमाज के अलावा हमें और आपको जो नफली नमाजें हैं, जो सुन्नत मुअक्कदा हैं,
ये नहीं कि पढ़ करके अभी नमाज खत्म हो फौरन यहाँ से निकल जाएं। 2 रकात जो भी सुन्नतें हैं उसको आप पढ़ करके जाइएगा। और इसी तरीके से आम जो नमाजें हैं, 5 वक्त की जो नमाजें फ़र्ज हैं हमारे ऊपर, हमारे और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हमसे हो सके हम क्या है नमाज में पहले आएँ, पहले सफ़ के अंदर दाखिल हों और जो सुन्नतें हैं उसको भी अदा करें। इसका फ़ायदा ये है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला लिल्लाहि 40 यौमन, कि जो शख्स 40 दिन तक जमात के साथ नमाज पढ़ता है, पहली तकबीर के साथ, जो शख्स पहली तकबीर उला के साथ अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है, कुतिबा लहू बरातान बरात मिनन नार व बरात मिनन निफाक, तो उसके लिए 2 बरात लिख दिया जाता है। बरात यानी आज़ादी लिख दिया जाता है ऐसे लोगों के लिए। एक ये कि उसके दिल के अंदर निफाक नहीं आएगा, निफाक ये इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके और फिर इस्लाम ही को नुकसान पहुंचाया जाए, ये क्या उसके अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ें उसको जन्नत से जहन्नम से उसको आज़ादी दिला दी जाती है, यानी उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, हमारे असलाफ का क्या अमल था इस मैदान में, नमाज के ताल्लुक से हमारे असलाफ का क्या मामला था, आप अभी सोचेंगे, आपके सामने ये बातें रखूं तो आप ताज्जुब करेंगे। हजरत इमाम इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हुए कहते हैं, एक किताब सीर व अलामिन नुबला जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 221 के अंदर ये कौल उनका मौजूद है। जब उनसे पूछा गया नमाज के मुतालिक तो उन्होंने फरमाया कि मा अज़्ज़नल मुअज़्ज़िनो मुंज़ु सलासीना सनतन इल्ला वाना फिल मस्जिद, कि 30 साल की मुद्दत गुजर गई, 30 साल का वक्फा गुजर गया है और जब भी मुअज़्ज़िन ने आज़ान दिया मैं मस्जिद के अंदर मौजूद रहा। यह सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह का कौल कि 30 साल बराबर में कंटिन्यू मस्जिद के अंदर रहता हूं जब भी मुअज़्ज़िन अज़ान देता है। और एक कौल के मुताबिक यह है कि मेरी नमाज कभी फौत नहीं हुई, इल्ला ये कि मेरी नमाज कभी फौत नहीं हुई, मा फाततनी सलातो मुंदो 40 सनतन, 40 साल तक मेरी नमाज फौत नहीं हुई और उस वक्त में मौजूद रहा जब मुअज़्ज़िन ने अज़ान दिया। मेरे भाइयों, इसी तरीके से इमाम इब्न रबिया का कौल, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 40 साल का वक्फा गुजर गया है, जब मुअज़्ज़िन ने जब भी अज़ान दिया मैं मस्जिद के अंदर रहा, इल्ला यह कि मैं बीमार रहा हूं या इसी तरीके से मैं सफ़र में रहा। तो मेरे भाइयों, इस तरीके के अक़वाल ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कहने और सुनने में तो बहुत आसान है। ये 1 दिन की बात नहीं है, 2 और 1 हफ्ते की बात नहीं है, ये 1 महीने और 1 साल की बात नहीं है। मेरे भाइयों, ये 40 साल की और 30 साल की ये बात है कि 30 साल का वक्फा गुजर जाए और आदमी की नमाज फौत ना हो। सोचिए जरा, तसव्वुर कीजिए। यही वजह है कि आज ऐसे लोगों का नाम यहाँ मिंबर रसूल से जिक्र किया जाता है, ऐसे लोगों का नाम यहाँ बयान किया जाता है। मेरे भाइयों, बस एक बात ये कि अपने अंदर तब्दीली लाइए। हमें नमाज की पाबंदी तो करना ही करना है, इसी तरीके से अपने दिल क्या है, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाइए। हमारी ज़िंदगी में कितना रमज़ान आया और गुजर गया, ये भी रमज़ान आएगा और ऐसे ही चला जाएगा। हमें और आपको तब्दीली लाना है। ये नहीं कि हम 2 या 4 दिन तरावी पढ़ लें, उसके बाद में फिर यहाँ से गायब हो जाएं। फिर बाज़ लोगों का ये अक़ीदा कि हम 1 दिन क्या है 1 महीने में जो 1 दिन का रोज़ा रख लें, लास्ट का 1 रोज़ा रख लें, बीच में गायब कर दें, हमारी बख्शिश हो जाएगी। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। हमें और आपको पूरे महीने का मुकम्मल तरीके से पाबंदी करना है। हमें और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाना है। ये फिर हमें ये मौका मिले ना मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि तुम अपने रब की इबादत करो उस वक्त तक करो जब तक कि तुम्हारी मौत ना आ जाए। इस आयत करीमा के अंदर पूरी जिंदगी को समेट करके रख दिया गया कि आपको इबादत उस वक्त तक करनी है जब तक कि आपकी मौत नहीं आ जाए। ये नहीं कि हम 1 महीने इबादत कर लिए, 2-4 दिन इबादत कर लिए, बाकी पूरा साल गायब रखिए। नहीं मेरे भाइयों, तब्दीली का मतलब यही है कि हम और आप अपने आप को ये एक्टिव कर लें, अपने आप को इतना हम ट्रेंड कर लें इस महीने के अंदर कि बाकी महीनों में हमें इस बात की जरूरत ही ना पड़े। जैसे ही अजान की आवाज हमारे कानों से टकराए, फौरन हमारे कदम मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। मेरे भाइयों, यही वो चंद बातें थी, और भी बहुत कुछ बातें हैं, इंशाअल्लाह फिर दूसरे मौके पर आपके सामने रखी जाएगी। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तो हम तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक से मुकम्मल तरीके से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो हमसे ख़ताएँ हुई हैं दीगर महीनों में, ऐ अल्लाह तो इस महीने को ज़रिया बना दे कि वो हमारी ख़ताएँ माफ़ हो जाएँ।
اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو اللہ تو دور کر دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ اور کوئی سبیل نکال دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔